Welcome to my channel, Hafiz Abdur Rahman Officials. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور جو قابل تعریف اور قابل عزت جو بزرگان دین ہیں، اور سب سے پہلی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم عبادت کریں، ورنہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم خود سے آ کے عبادت کریں. لیکن ہم ہمارے حساب سے گناہ تو کر لیتے ہماری چاہت سے، لیکن عبادت نہیں کر سکتے. عبادت کرنا ہے تب بھی اللہ کی ہدایت اور اللہ کا کیا ہونا ہے؟ فضل ہونا ہے. اگر اللہ نہیں چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دن میں ایک دو نماز پڑھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نہیں بھائی الحمدللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں مسلمان. ارے وہ دن میں ایک جو دو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے تب پڑھ رہے ہیں، خود سے نہیں آ کے پڑھ رہے ہیں. تو ابھی میں نے خطبے میں میری بات شروع کرتے وقت میں ایک آیت تلاوت کی. سورۃ البقرہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایک اور آیت تلاوت کی میں نے، یعنی پوری آیت نہیں ہے، صرف آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ آیت کا ٹکڑا ہے، پوری مکمل آیت بہت بڑی ہے. تو ابھی اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی. تو بے شک جو نماز ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے، گناہگاری سے، زناکاری سے، چوری سے، ان ساری چیزوں سے ہمیں حفاظت کر. تو ابھی دیکھو انشاءاللہ جو پچھلا جمعہ گیا تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ نماز کی ہماری زندگی میں یعنی ایک اہم ترین عبادت کیوں ہے نماز ہماری زندگی میں، اور نماز سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ بارے میں بات کیا. تو بہت سارے لوگوں کا ڈاؤٹ آ رہا تھا کہ حافظ صاحب آپ تو بول رہے ہیں نماز پڑھو، آپ تو بول رہے ہیں نماز پڑھو، نماز سے پڑھنے سے ہم نا کیا فائدہ؟ یا بھائی پوائنٹ وار منمو بیان చేసింది. నమాజ్ చదువండి, ఎందుకు నమాజ్ చదవాలా, నమాజ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, దాని గురించి మనము బయాన్ చేసింది. చాలా మంది నేను విన్నాను, నాకు చెప్పలేదు, బయట మాట్లాడుకున్నారు. ఏం మాట్లాడుకున్నారు? నమాజ్ చదవండి చదవండి అని ఆఫీసా హజరత్ చెప్తున్నాడు కదా, నమాజ్ చదివితే మనము స్వర్గంలో పోయే వాళ్ళం అవుతాం, పుణ్యాలు దొరుకుతాయి, అది విడిచిపెట్టండి. మనం పుణ్యాలతో పాటు పుణ్యాలు సంపాదించి ఇల్లు అనేది గడపలేం కదా. నమాజ్ ద్వారా దునియాలో ఏం ఉపయోగము అది చెప్పలే కదా. ఎందుకు చెప్పలేదంటే టైం కొద్దిగా తక్కువ ఉంది కాబట్టి చెప్పలేదు. ఇన్షాల్లాహ్ ఈరోజు దాని గురించి మాట్లాడదాం. क्या भाई पिछले जुमा हमने नमाज की जो अरकान है, नमाज का क्या हमारी जिंदगी में एक माहौल है और नमाज हमारी जिंदगी में अफजल अमल क्यों, इसके बारे में बात करे थे. बहुत सारे लोगों के डाउट था, तो वो डाउट अभी इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे. तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ. आप लोगों से सवाल है मेरा, प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ప్రతి ఒక్కరి కోసం, ప్రతి ఒక్కరికి జన్నత్లో తీసుకొని పోవడానికి కోసం, ప్రతి ఒక్కరికి మంచి చేయడానికి కోసం अल्लाह के नबी हर एक के लिए रहमत बन के दुनिया में आए. लेकिन सच बात है, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं और अल्लाह जानते हैं, पूरी दुनिया जानती. तो आप बताओ अल्लाह के नबी किसी इंसान को बदुआ से दे सकते कभी? अल्लाह के नबी किसी इंसान को बदुआ दे सकते? नहीं दे सकते.
ہم مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی رحمت ہے, معاف کرنے والے ہیں, صادق, امین, بہت سارے اللہ کے نبی کے نام ہیں. اللہ کے نبی جیسے اخلاق, ویسی شخصیت آج ہمیں دنیا میں, پوری دنیا میں ڈھونڈنے تو نہیں ملتی, کیونکہ اللہ نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب, جو نام, جو محبت, جو مقام کیا تھا, پیدا کیا تھا, صرف وہ ایک نبی کے لیے ہی کیا ہے. آخر اس زمان ہر نبی ہو سکتے کبھی نہیں, صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بتاؤ اللہ کے نبی ایسے رحم دل کہ انہوں نے کبھی پوری زندگی میں کافروں کو کبھی بھی بد دعا نہیں دی, دشمنوں کو کبھی بھی بد دعا نہیں دی, یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے ان کو بھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی. کیا ہے پروکتا صلی اللہ علیہ وسلم ఎవరికి బద్దువా అనేది లేదు. బద్దువా అంటే వేరే వాళ్ళది చెడు అనుకోవడం, వేరే వాళ్ళది చెడు అవ్వాలా, వాళ్ళకి నష్టం జరగాల అని ఎప్పటికీ అనుకోరు. ఎప్పుడైనా కానీ మంచి ధ్యానంతో ఉండే మనిషి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం. అట్లాంటి మనిషి బద్దువా తిట్టున్నారు, यानी बद्दुआ दे रही, वैसे लोगों को डांट रहे, डपट कर रहे, किनको अभी आगे आता है. तो अभी पहले हम जो बात हम मुकम्मल कर लेंगे. प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का वाकया प्रति ఒక్కరికి की తెలుసు. ताइफ का जो वाकया है हर इंसान को मालूम है. अगर तफसील से वो वाकये को हम पढ़ेंगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे. हमारे खातिर, हमारे जो बेचीज, नाचीज, गुनाहगार, सियाहगार, खताकार, मुजरिम, हमारे जैसी उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने पूरे जिस्म को खून कर लिया. लेकिन अभी अल्लाह के नबी ताइफ को गए थे तो कौन सी नियत लेके गए थे? अगर मेरे दावत जाने के बाद, दावत देने के बाद अगर अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी, किसी को उसमें से चुन लिया, तो किसका भला होता? आने वाली मेरी उम्मत का भला होता बोल के सोच के नहीं कहते. अल्लाह के नबी को कोई करोड़ रुपए देने वाले थे क्या? तुम ताइफ को जाओ, करोड़ रुपए देते, एक बादशाह को दावत दो, लाख रुपए देते, कोई बोले थे? अल्लाह बोले थे कि ऐ अल्लाह के नबी तुम ताइफ जाओ और दावत दो, मैं औकत का पहाड़ तुम्हारे लिए सोना बना कर दे, तो बोले थे अल्लाह? अल्लाह के नबी अगर तकलीफ झेले तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे नाचीज, बेकार बंदों के लिए झेले. लेकिन अगर हम चाहें तो अल्लाह के नबी की जो मुसीबतें हैं, जो अल्लाह के नबी ने तकालीफ उठाई हैं, उनका फायदा हासिल कर सकते. वरना अल्लाह के नबी की इतनी तकलीफें उठाने का कोई फायदा नहीं है. अल्लाह के नबी के ताइफ का अगर वाकया हम पढ़ेंगे तफसील से तो हमें आंखों से आंसू आ जाती. यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक तक खून हो गई थी. किताबों में तफसील से आता है. पुस्तक अल-उस्तदी प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ ఒక వీధి ముల్క్ से बोलते ना, ఒక ఊరు, అక్కడ పోయి దావత్ ఇచ్చినారు. ఏమని ఇచ్చినారు? నేను ఇక్కడ పోయినాక దావత్ ఇస్తే వాళ్ళు ముసల్మాన్ అయ్యి దీని ఒక ధర్మాన్ని పాటించే వాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళు పాటించే వాళ్ళు అయితే రేపు పొద్దున్న నా ఒక ఉమ్మతులు వస్తారు కదా, వాళ్ళ కోసం అనుకూలం అవుతుంది అని ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పెట్టింది. కానీ వాళ్ళు మా కోసం అంత ఇబ్బంది పడరు, మనం వాళ్ళ కోసం ఏం చేయలేము, కనీసం మా కోసమైనా చేయండి అని మరి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? నేను చేసిండే త్యాగాలు ఉన్నాయి కదా, అవి మీకోసము, మీరు నా కోసం త్యాగం చేసి అక్కర్లేదు, అవసరం లేదు, మీరు మీకోసం త్యాగాలు చేయండి. అల్లాహ్ నబీ क्या बोले? मेरे मुसीबतें जो है, मेरे तकलीफें जो है, वो मैं मेरे लिए, बस आप क्या है अपनी तरफ से तकलीफें, मुसीबतें मेरे लिए उठाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जन्नत को बनाओ, बस मैं क्या हूं खुश. ऐसी तकलीफ किताबों में आता है. पुस्तकाल उस्तदी अక్కడ ताइफ లో దావత్ ఇచ్చేపోయినాక ముగ్గురు क्या बोलते सो ఈ రోజుల్లో మనం పిఎం అంటాం, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर. ఆ రోజుల్లో రాజులు ఉండేవాళ్ళు. वो जमाने में राजा, सरदार, कबीले के जिम्मेदार बादशाह थे. तो तीनों के तीनों बादशाह क्या बोले? एक आदमी पहले जो बादशाह था वो बोला
کہ تم نبی سچے ہیں، اگر میں تمہاری بات سننے کے بعد منع کرا تو میرے لیے مصیبت سے خالی نہیں ہے، تم کیا کرو، میں تمہاری بات ہی نہیں سننا چاہتا۔ تو دوسرا آدمی بولا میں تمہاری صورت تک دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ تیسرا آدمی بولا اللہ تم نفس نبی بنانا تھا کیا، دوسروں کو بھی بنا سکتا تھا نا۔ یہ بات اللہ کے نبی پھر بھی ہمت نہیں ہے، ان کو بددعا نہیں دی، تکلیف محسوس نہیں کر۔ دعوت ఇచ్చిన మళ్ళా తిరిగి పోతున్నప్పుడు ఆ ఊర్లో పాయం పిల్లలు ఉంటారు కదా చిల్లర్, ఈ రోజుల్లో మా పిల్లలు ఉన్నారు కదా, आज हमारे बच्चे वैसे ही हैं जी, आज हमारे बच्चे वैसे ही हैं, दीनदार नहीं है आज हमारी औलाद। क्या कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाड़ी इधर जा रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साइलेंसर काट के गुर्र बल के जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे। आज हमारी औलादें हैं। पहले के जमाने में ऐसे शरारत लड़के थे, यानी शरारत करने वाली नौजवानी ग्रुप थी, तो वैसी एक ग्रुप को, नौजवानों को, शरीर लड़कों को अल्लाह के नबी के पीछे लगा दिए। उन्होंने अल्लाह के नबी को पत्थर मारते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी की जिस्म में, जैसे कि किताबों में आता है, पत्थर पड़ने के बाद जैसे इंसान को कोई वजन चीज ऐसा पड़ने के बाद गोश्त वहां का दब जाकर गड्ढा पड़ता है, मालूम। जस्ट इमेजिन, थोड़ा इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई एक आदमी ग्रुप नहीं, सिर्फ एक आदमी अगर पत्थर फेंके तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती जी। एक आदमी सिर्फ एक पत्थर फेंके, चलो वो मान लो, सिर्फ एक आदमी एक पत्थर फेंके, जोर से फेंके और आपको लग गया, कितनी तकलीफ होती है, आंखों से आंसू आ गए, खून निकल जाए। अल्लाह के नबी को नौजवानों की ग्रुप पीछे पड़ के पत्थर मार रही थी, एक एक पत्थर नहीं, कई पत्थर। और अल्लाह के नबी को उतने पत्थर मारने के बाद भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरिश्तों के जो जिम्मेदार फरिश्ते हैं उनको भी, यानी जो पहाड़ों के जिम्मेदार फरिश्ते हैं उनको भी लेके आए और बोले कि ऐ अल्लाह के नबी अगर आप इजाजत दे दें तो मैं ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के बीच में क्या कर देता, दबा के हमको नामो निशान कर दे, तू बोले। लेकिन अल्लाह के नबी बद्दुआ नहीं दी। कितनी जबरदस्त अखलाक है हमारे नबी के, कितनी रहम दिली है अल्लाह के नबी की जात, कितनी रहम वाली है। तो सोचो अल्लाह की नबी की जात इतनी रहम वाली है तो अल्लाह कितना रहीम करीम है, सोचने की बात। కొద్దిగా మనం ఆలోచించాలి। అంత ఇబ్బంది పెట్టినా కానీ, అంత కష్టపడ్డ వాళ్ళకి అంతగా నొప్పి పెట్టినా కానీ ప్రవక్త సల్లల్లాహు अलैहि वसल्लम వాళ్ళ గురించి ఒక్క మాట, उनके लिए एक छोटा सा लफ्ज बदुआ नहीं दिए। लेकिन కానీ ప్రవక్త सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ఒకప్పుడు యుద్ధంలో एक टाइम पे जंग के वक्त में सूरज डूब गया, अल्लाह के नबी नमाज नहीं पढ़ी, वक्त हो गया, जंग में बिजी थे अल्लाह के नबी, और अल्लाह के नबी को मालूम हुआ कि वक्त निकल गया, नमाज मेरी छूट गई, कज़ा हो गई। तो अल्लाह के नबी क्या बोले, बद्दुआ दी अल्लाह के नबी। सोच सकते हैं आप, अल्लाह के नबी को जिस्म पूरा खून हुए तक हमारे नौजवान, तब भी अल्लाह के नबी बद्दुआ नहीं दिए। लेकिन अगर कोई इंसान जो कौम सामने वाली लड़ने वाली थी, जो काफिर लड़ने आए थे, जो दुश्मनान इस्लाम लड़ने आए थे जंग में, तो अल्लाह के नबी ने उन लोगों के लिए क्या बताया मालूम, अल्लाह तू इनके क्या है कब्रों में आग को जला दे, इनकी जिंदगियों, इनके घरों को जला दे, और मर जाने के बाद इनके कब्रों में तक आग लगा हो जाए, सिर्फ एक नमाज कज़ा अल्लाह के नबी की कराने की वजह से। तो नमाज इतनी बड़ी चीज है जी। आज हम क्या समझ रहे हैं, एक नमाज पढ़ ली है, दूसरी नमाज नहीं मिला तो पढ़ ली, नहीं तो नहीं। आज हम सिर्फ जुमा की नमाज बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ बहुत सारे लोग सुबह की नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इशा की नमाज पढ़ रहे हैं। 5 नमाजें पढ़ना है, अल्लाह कुरान में 5 नमाजें फर्ज किए हुए हैं, बताते हैं कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। यानी सलाह, यानी जो नमाज है वो उसके वक्त पर मुकर्रर की हुई, जो वक्त रहता ना वो वक्त पर पढ़ना फर्ज है, बोलिए अल्लाह। और फर्ज अमल एक ऐसा अमल है जो जैसे कि कर्ज के मानिंद हो। जैसे आप कोई इंसान के पास कर्ज लिए ना, तो कर्ज देना बनता ना आपके ऊपर हक,
تو ویسا اللہ کے پاس سے ہم ہماری زندگی قرض لے کے آئے ہیں، اور وہ قرض کی ادائیگی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز۔ آج ہم اللہ کی طرف سے دی ہوئی زندگی کا کچھ قرض ادا کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ مملی جیویتا میں دی اسنارو మనకు అల్లాహకి దీని బదులుగా డబ్బులు ఏమైనా ఇస్తున్నామా? మా ఆస్తి ఏమైనా రాసిస్తున్నామా? हम अल्लाह को कुछ दे रहे कि भाई हमारी जमीन, हमारे पैसा कुछ दे रहे हम? नहीं। तो अल्लाह को अगर हम दे सकते हैं, इसके बदले में अगर हमारा कर्ज अदा हो जाए तो कैसे होता? इबादत से होता। इबादत चाहिए अल्लाह। అదిగాని మనము ఇబాదత్ చేసినాక పుణ్యాలు వస్తాయి కదా, ఆ పుణ్యాలు ఎవరి కోసం వచ్చేది? वो भी हमें अल्लाह को नहीं देते थे। जो हम इबादत करती, जो नमाजें पढ़ती, वो नेकियां भी हमारे ही लिए है। कल जाके जन्नत में जाना है ना, तो वहां पर नेकियां काम आती ना हमारे लिए। अगर सोचो हमारी इबादतें भी अल्लाह हमारी जिंदगी के बदले में ले लिए, तो जन्नत में कौन जगह को जाने वाला? आप लोगों को मैं छोटी सी बात बताता हूँ। अभी जो बात मैंने शुरू में बताई थी, बहुत सारे लोगों का एक थॉट है, एक डाउट है। क्या है? नमाज पढ़े तो आखिरत में फायदा है, नेकियां मिलती, अल्लाह हमना जन्नत देती, ये सारी चीजें हैं। मान लो हाफिज साहब हो गया, छोड़ो खत्म। अब ये बात बोलो, नमाज से हमना दुनिया में क्या फायदा? नमाज చదివితే ప్రపంచంలో మనం జీవితం గడుపుతాం కదా, జీవితంలో మనం గడిపే అంత కొద్దిగా మాకు ఏం ఉపయోగము? దునియాలో ఏం ఉపయోగం? छोटी सी बात बताता हूँ। आप सोचो, अगर आप नमाज पढ़ रहे पांचों वक्त की, तो तुम तालीम सुनते नहीं सुनते? सुनते। और तालीम सुनने के बाद तालीम में क्या हमें मालूम होता? औलाद की कदर करना, माँ बाप की कदर करना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर शफकत करना, यही सारी चीजें मालूम होती ना। तो छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका बच्चा नमाज पढ़ रहा है, पांचों वक्त नमाज पढ़ रहा है, नमाज को आ रहा है, तुमने क्या जान लेता? माँ बाप की हुकूक जान लेता। और अगर उन्हें माँ बाप के हुकूक जान लिया, పెద్దోళ్ళకు విలువ, పిల్లలకి నమాజ్ వస్తే మసీద్కి వస్తేనే తెలిసేది। బయట స్కూల్ ఎవరైనా చెప్తారా అమ్మా నాన్న హుకూక్ ఇవి ఉన్నాయి? बोलते क्या स्कूल में कोई सब्जेक्ट है कि जी अम्मी अब्बा के हुकूक ये हैं, अब्बा के ये हुकूक, अम्मी के ये हुकूक, बहन के ये हुकूक, भाई के ये हुकूक हैं? नहीं जी, वो सारी चीजें मस्जिद में मिलती। और मस्जिद जब बच्चा आता नमाज के लिए, तो नमाज भी पढ़ता, दीन भी सीखता। और जब बच्चा नमाज पढ़ता, पांचों वक्त की नमाज के साथ साथ में माँ बाप की कदर, बड़ों की कदर जानता, तो कल जाके उन्हें किसकी इज्जत करता? मेरी करता, इमाम साहब की करता, मेरी मस्जिद की इज्जत करता। वो तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह करता, लेकिन जब घर को जाता तो घर में किसकी इज्जत करता? माँ बाप की इज्जत करता नहीं करता? तो दुनिया में फायदा हुआ नहीं हुआ नमाज? तो दूसरी, ये पहली चीज जो मैंने बताई, पहली चीज दुनिया में हमारे लिए नफा क्या है? अगर हमारी औलाद మా పిల్లలు నమాజ్ చదివాళ్ళు అయినారు అంటే, వాళ్ళు పెద్దోళ్ళకు విలువ తెలుసుకుంటారు। వాళ్ళు పెద్దోళ్ళ విలువ తెలుసుకుంటారు అంటే, వాళ్ళు విలువ ఎవరికి ఇస్తారు? ఇంట్లో పోయి పెద్దోళ్ళకి ఇస్తారు। घर में जाके क्या करते बच्चे? माँ बाप की इज्जत देते, बड़ों की इज्जत देती, बच्चों पर शफकत करते। एक फायदा दुनिया में क्या है? हमारी औलाद हमारी कदर करने वाली बन जाती नमाज की वजह से। एक दूसरी बताता हूँ, नमाज में अल्लाह ताला ने एक ऐसा सुकून रखा हुआ है, अगर कोई इंसान एक मर्तबा हासिल कर ले तो उसकी उसे लत पड़ जाती, आदत पड़ जाती। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरू। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। और अब बताओ, अल्लाह किसी को याद कर रहे हैं, अल्लाह किसी को पसंद कर रहे हैं, అల్లాహ్ ఎవరికైనా మెచ్చుకుంటున్నారు అంటే అల్లాహ్ తాలా ఒక మనిషికి ప్రశాంతత అనేది ఇస్తారా లేదా? भाई अल्लाह अगर किसी को चाह रही, किसी को पसंद कर रही, किसी से मोहब्बत कर रही, किसी को याद कर रही, तो उसे दिल का सुकून, दिमाग का सुकून, दुनिया में सुकून, आखिरत का सुकून देती नहीं देती? आज हमें इंसानों से मोहब्बत कर रही, सिर्फ जैसे कि मान के चलो नौजवान जो है ना हमारे, उन्होंने क्या करती, औरतों से मोहब्बत कर लेते, गर्लफ्रेंड वगैरह जब बना लेती, हराम रिश्ते हैं सब। तो जब गर्लफ्रेंड इंसान की बन जाती ना, तो उन्हें सिर्फ इंसान से इंसान को मोहब्बत करता। तभी उन्हें क्या सोचता मालूम? उन्हें जब भी फोन करती फौरन उठाता, क्या सोचता? तकलीफ
उन्हें जब भी कॉल करके बोलती मेरे को पैसा चाहिए, फौरन डाल देता। क्या करता? तकलीफ नहीं होना, परेशानी नहीं होना, मुसीबत नहीं होना उनको। भले खुद के जेब में 100 रुपए ना हो, अगर कोई औरत फोन करके पूछी कि 100 रुपए की जरूरत है तो दूसरे के पास भीख मांग के डालता हूँ। क्या करता? डालता हूँ। आज की जनरेशन की हकीकत है। तो अब बताओ, ऐसे हमारे जो कमतर इंसान जात, जो नौजवान है, गुनाहगार है, वो जो इंसान से चाह रहे उसे तकलीफ नहीं देना चाह रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कितनी बड़ी जात है जी। और अगर अल्लाह किसी को चाह रहे तो किसी को तकलीफ दे दे, किसी को परेशानी दे दे। पहली चीज, हमारी औलाद हमारी कदर करने वाली बन जाती, नमाज से फायदा जो है। दूसरी चीज, जो सुकून नमाज में हमें मिलता, वो सुकून आप करोड़ों रुपये भी कमा ले नहीं मिलता। ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఉన్నారు, నేను చూస్తున్నాను, నా దగ్గర వచ్చి చెప్పున్నారు కానీ बहुत सारे लोग मेरे से बात भी करी है, मैं सुना भी हूँ। हमारे बहुत सारे हजरात हैं, यानी जो हमारे बड़े हजरत हैं, जो हमारे जिनके पास मैं इल्म हासिल किया, वैसे लोगों के पास बहुत आते थे। जब हम मदरसा पढ़ रहे थे, बहुत सारे हजरात मदरसे को आते थे, बोलते थे कि हजरत परेशानी है, पैसा है, करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, बंगला है, लाखों का जमीन है, रोड के बाजू में बड़े बड़े प्लाटा है, शॉपा है, सब है, अल्हम्दुलिल्लाह। घर बैठे बैठे भाड़े आ रही, मस्त कमा के क्या करो, पैसे उड़ा रहा। क्या है? अल्लाह ताला చెప్తున్నారు, మీరు నన్ను ఇడిచిపెట్టి ఏదైనా మీరు తినండి, ఏదైనా తీసుకోండి, ఏదైనా చేయండి। अल्लाह क्या बोले कुरान में, तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी देखो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अगर सुकून है, अगर सुकून होना है तो कहाँ आना है, मेरी तरफ आओ, तब जाके मैं तुमने क्या करता हूँ। तो हमारे हजरत ये बोल को भेजते थे, क्या बोल के भेजते थे? नमाज पढ़ो इंशाल्लाह सुकून मिलता बोल के भेजते थे। और वो इंसान मैं अपने आंखों से देखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। వాళ్ళు మళ్ళా హజరత్ వచ్చి అడుగుతుంటారు, హజరత్ డబ్బులు ఉన్నాయి, ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కటి ఉంది, మనిషికి మనసు ప్రశాంతత, లోపల ప్రశాంతత అనేది లేదు। బయట మంచి బట్టలు వేసుకున్నాను, టోపీ పెట్టుకున్నాను, మంచి చష్మా, అయినా తగాయా हूं, गाड़ी बड़ी रखा हूं, कार बड़ी रखा हूं, दिल में सुकून नहीं है हजरत, अंदर सुकून नहीं है हजरत, क्या करूं? మాజరత్ చెప్తుంటే నమాజ్ చదవండి, ఇన్షాల్లాహ్ అల్లాహ్ తాలా మీకు మనసు ప్రశాంతత, మనిషి లోపల ప్రశాంతత అనేది ఇస్తారు। నేను చూసినాను, వాళ్ళు మళ్ళీ రెండోసారి వస్తుంటారు కదా, जो इंसान हमारे हजरत से राय लेके जाता था ना, नमाज पढ़ोगे, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, वो इंसान आके फिर बोलते थे मुलाकात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, माशाल्लाह जब से मैं नमाज पढ़ना शुरू किया हूँ, अल्लाह का फजल, बहुत सुकून मिल रहा है। आज बहुत सारे लोग मेरे को भी बोल रहे हैं, आप साहब बहुत अच्छे, नमाज पढ़े तो बहुत सुकून मिलता है, लेकिन नमाज कैसा पढ़ना होगा? ये दुकान का दरवाजा खुला है, दुकान में बच्चे को छोड़ गई, कौन आती की कौन नहीं की, हैं? मैं यहाँ आ गया, गिरा गया तो क्या होता कि आज हमारे बड़े लोगों की टेंशन है, और हमारे नौजवानों की टेंशन है क्या है मालूम? फोन चार्जिंग रखी हूँ, कितना हुआ कि नमाज के बाद किसके बाद बात करना है कि किस कौन सा गेम खेलना है कि क्या देखना है कि, हमारे नौजवानों की टेंशन है। और हमारी औरतों की क्या टेंशन मालूम? पहली चीज तो हमारे औरतों में बीमारी है, आड़ो लोगों का ये बंदे, हमारे औरतों में क्या है? पहली बीमारी जो है ना, वो है नमाज ही नहीं पढ़ते। हमारे जो मर्द हजरात हैं वो तो कैसे तैसे कर लेंगे, अल्लाह माफ करे पढ़ लेते हैं, हमारी औरतें नमाज ही नहीं पढ़ती। क्या बोलती? नहीं जी, बच्चों को स्कूल में रेडी करने था, वो बिजी थी, बच्चों को स्कूल में रेडी करके भेजना था, रेडी बिजी थी, पकाना था बिजी थी, खाना था बिजी थी। अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है, बेनमाजी के हाथ का खाना भी हराम है। और अगर हमारे औरतें अगर नमाजें छोड़ के खाना बना रही हैं, तो जाके किताबें देखो, हम हराम खा, मेरी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, अल्लाह के नबी की बात बोल रहा हूं। प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम చెప్తారు హదీస్లో, ఎవరైతే నమాజ్ చదువురో, जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ते, वैसे इंसान के हाथ का खाना भी हराम है। ఈ రోజుల్లో మాడలు ఏం చేస్తున్నారు భయ్? माड़ों ले सुनारो ये सीरियल टाइप पे देखते थे, जो सीरियल है ना, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, सवाल क्या होने वाला है, सब मालूम रहता हमारी औरतों। ఈ రోజుల్లో మాడులు నమాజ్ లేవుకున్నట్లు అన్నం చేస్తున్నారు, అదే అన్నం మనం తింటున్నాము, పిల్లలు తినిపిస్తున్నాము।
ఆలోచించండి, మనం తింటుండేది హరామ హలాల్. जो खा रहे हैं ना हमारी औरतों के हाथ से खाना, भले हमारी कमाई हो, कमा के लाने से कौन हमें खिला रही, लेकिन सोचो उसे बनाने वाला जो है किसके हाथ से बन रहा है वो, और अगर हमारी औरतें नमाज कितनी तो हराम खा रही. सोचो, सोचना है इसके बारे में. नमाज से पहला फायदा अपनी औलाद कदर करने वाली. दूसरा फायदा इंसान को अल्लाह ऐसा सुकून देती जो सुकून पूरी दुनिया मिलने के बाद भी इंसान को हासिल नहीं. और तीसरी चीज अल्लाह खुद बोल रही, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, मदद चाह रहा है, सब्र कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह. नमाज 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 अल्लाह कुरान में बार-बार फरमा रहे, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, मदद चाह रहा है, नमाज पढ़ रहा है और सब्र कर रहा है, तो उसके साथ कौन है भाई? इन्नल्लाह मअस साबिरीन. अल्लाह चाहे तो ये भी बोल सकते थे ना कि मेरी रहमत उसके साथ में है, मेरी मदद उसके साथ में है, मेरी चाहत उसके साथ में है. नहीं, डायरेक्ट अल्लाह क्या बोले? इन्नल्लाह मअस साबिरीन. ऐसे सब्र करने वालों के साथ मैं हूं बोले अल्लाह. आज हम वही नमाज छोड़ के क्या कर रहे हैं? ये दुआ कबूल होना లేదా మీ సార్, పనులు అవ్వడం లేదా మీ సార్, మరి ఏ ఆపదలు వస్తున్నాయి మీ సార్? వస్తాయి భయ్. మనం అల్లాహ్ని విడిచిపెట్టి మనము వేరే వాళ్ళని తెలుసుకుంటే, వేరే వాళ్ళ దగ్గర పోతే ఏమవుతుంది? మనం అల్లాహ్ ఒక దారిలో అల్లాహ్ కోసం మనము అల్లాహ్ దగ్గర మనం వచ్చి చెయ్యి చాపి మనము అల్లాహ్ తాలా ఇది నాకు కావాలి, నువ్వే ఇచ్చేవాడు, నువ్వు ఈ అంటే అల్లాహ్ తాలా ఇడా. अगर हम अल्लाह को नमाज पढ़ के अल्लाह को मना के, अल्लाह तू ही देने वाला है, तू करने वाला है, तू नहीं दिया तो मैं किसके पास जाऊं? तू दे बोले तो नहीं देता अल्लाह, मांग के तो देखो. मांग रहे नहीं बोल रही क्या है अल्लाह दे रहे नहीं, दुआएं कबूल नहीं करेगा. आज की हकीकतें हैं ये. सोचना है इसके बारे में हमें. थोड़ा सा सोचो. आज हमारे जो मुसलमान हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, इन्हों क्या कर रहे हैं? नमाजें तो अदा कर रहे हैं, लेकिन जैसे अदा करना वैसा नहीं कर रहे, इसलिए नमाज में सुकून नहीं मिल रहा. बहुत सारे लोगों को माइंड में डाउट आ रहा था, सब तुम्हें सुकून मिलता है तो इतनी बार बोले ना जी नहीं मिल रहा जी. तुम्हारी नमाज में खतरा है. ये सुकून अल्लाह देने में कोई कमी पेशी नहीं करते. तुम्हारी नमाज में खतरा है, तुम्हारी नमाज बराबर नहीं, इसलिए अल्लाह सुकून नहीं दे रहे. नमाज कैसे पढ़ना है? जैसे अल्लाह, अगर कोई नमाज इंसान पढ़ रहा है तो ये सोच के पढ़े. हदीस में आता है वो इंसान के माइंड में ये हो कि अल्लाह मेरे को देख रहे हैं, यानी मैं अल्लाह को देख रहा हूं. ऐसे सोच कर नमाज पढ़ो. और अगर कोई इंसान ऐसे सोच के नमाज पढ़े तो सोचो उसके जहन में कोई दूसरी बात आती नहीं है. लेकिन आज हम वैसा नहीं पढ़ रहे, तो हमारे माइंडसेट में क्या है? दुकान के बारे में है, बीवी बच्चों के बारे में है, दुनिया के बारे में है, पैसों के बारे में है, गाड़ी बंगले के बारे में. हदीस में यहां तक आता है, उलमा फरमाते हैं अगर कोई इंसान तक़वे के साथ, परहेजगारी के साथ नमाज पढ़ता है, जैसे वजू करना है वैसे वजू करके मस्जिद में आके सिर्फ नमाज की फिक्र से आके, अल्लाह की याद की फिक्र से आके नमाज अदा करता है, तो अल्लाह उसका, अगर कोई इंसान सजदा करता है तो उसके सजदे को ऐसा पसंद करते हैं जैसे कि अभी अल्लाह के नबी के हदीस में आता है, कोई इंसान ऐसा सजदा करे, तकवा परहेजगारी के साथ नमाज करे और सजदा करे और सजदे में सर नीचे जमीन पर रखे, तो उसका जमीन पर सर नहीं होता, अल्लाह के गोद में होता है. कोई इंसान तकवे के साथ नमाज पढ़ रहा है तो उसका सर कहां होता है? जमीन पे नहीं. हम ना दिखने में जमीन पर दिख रहा है, लेकिन उसका सर अल्लाह के गोद में होता है. उलमा फरमाती किताबों में. आज हमारा सजदा क्या है? पेशानी जो नाक लगती ना जमीन पे, नाक भी बराबर नहीं लग रही, सिर्फ पेशानी रगड़ रही. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं देखा हूं हमारे जमात के साथ ही, अल्लाह माफ करे, नमाज में सिर ऊपर नीचे करते रहते. मैं 2-3 मरतबा पूछा हमारे लोगों को, क्या हम सब नमाज में सजदे में थोड़ा हालते रहते हैं? मैं 2-3 मरतबा क्या सोचा, रोरी बोल के समझे, क्या तकवा है भाई रोरी नमाज में. फिर उठने के बाद देखा तो कुछ भी नहीं है, आंखें में आंसू नहीं गए. क्या ये नमाज की निशानी नहीं आ रही थी, उसके से कैसे? आज हमारी हालत है, नमाज की निशानी नहीं आ रही थी, सजदा कर रही, उसे निशानी नहीं आ रही, उसका सिर घसो. हमारा सजदा कहां था? गया तो जब खाने तक है, जब खाने के नीचे डलसा तक भी नहीं लग रहा है. लेकिन अगर कोई तकवे के साथ नमाज पढ़ रहा है तो अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी के जो अहादीस से साबित है, उसे लेकर अल्लाह के नबी के जो दीन के सीखे हुए उलमा हैं, जो बड़े-बड़े किताबें लिखे हुए हजरात हैं, वो बताते हैं कि अल्लाह के गोद में उसका सजदा.
अल्लाह हमें ऐसी नमाजें पढ़ने की तौफीक दी और हमारी नमाजों में जान और तकवा आता है। तो आखिर में अभी देखो मैंने 3 चीजें बता दी। पहली चीज, नमाज पढ़ने से या नमाज पढ़ाने से किसका फायदा है? हमारा ही फायदा है। पहली चीज, औलाद क्या करने वाली बन जाती? कदर करने वाली, इज्जत करने वाली बन जाती है। वरना आज जाके देखो, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, चंद घरों में जाके वहां पर मैं बैठ के समझा के भी आया हूँ कि बहुत सारे हजरात ऐसे हैं, नौजवान 40-50 हजार रुपए सैलरी पे जो पैसा आता है ना, सैलरी पर्सन्स हैं, महीना महीना उनको बेफिक्र कुछ काम करो ना करो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक भी मैंने देखा है जी, अपने घरों पे क्या कर रहे हैं, साहब हमारे अब्बा बूढ़े हो गए जी, हर बार ये बोलते जी, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, इनका क्या करना जी, कैसे करना जी, बेजार होके आ रहे हैं माँ बाप से। और चंद लोग तो ऐसे हैं, अभी मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ मैं इमामत करने से आया ना, उससे थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले हम एक मर्तबा गए थे। मतलब वो बड़े लोगों का काम है, मेरा तो काम नहीं, मेरी इतनी ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, लेकिन बड़े लोग मेरे को साथ में ले गए थे। वाकया चला, एक छोटा लड़का सिर्फ अम्मा के पास जो प्रॉपर्टीज है ना, वो अम्मा मैं नहीं इनको दे दूंगा तो भी बोली नहीं, क्या बोली, मैं जब तक रहूं तब तक रहते बाद में दे दूंगा तो बोली सच। बेल्ट को मारा है, ऐसा मारा है अम्मा को, बरे पड़ी बरे, रेड लाइंस पड़ी पूरे जिस्म के ऊपर, ऐसा मारा है अम्मा पूरी। कल हमारे बच्चे भी अगर नमाज हम नहीं पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, ऐसा समझना, अगर कोई मारा खाने के लिए रेडी है तो तुम्हारे बच्चों को नमाज पढ़ाएंगे। अगर मारा नहीं खाना है, भले वो दुनिया में औलाद की मार हो या आखिरत में फरिश्तों की मार हो, तो क्या करना है, बच्चों को भी नमाज तो भेजना है, हमें भी नमाज पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमा में भेज दिए, सिर्फ सुबह में भेज दिए, इशा में भेज नहीं, 5 वक्त की नमाजें पढ़ाना है बच्चों। उसके बारे में सोचें। पहला फायदा, औलाद हमारी खिदमत करने वाली हो जाती। दूसरा फायदा, औलाद को ऐसा सुकून मिल जाता कि वो सुकून के जरिए हमारे लिए दुआ करने वाली बन जाती। और तीसरी चीज क्या बताया मैंने, नमाज में इंसान को क्या मिलता है, सुकून मिलता है। और वो सुकून अगर किसी को मिलना है, अगर किसी को सुकून हासिल करना है तो तक़वे वाली नमाज पढ़े, जब जाके वो सुकून हासिल हो, वरना नहीं होता। तो अभी ये जो नमाज के बारे में अभी मैंने बताया, तो ये नमाज कहां से हमें सीखने मिलती? किताबों में है, अहादीस में है, और उलमा के पास जाके बैठे तो ना मालूम कि भाई మనము ఇప్పుడు నమాజ్ గురించి మాట్లాడదాం. నమాజ్ మనము చదువుతున్నాము, కానీ సరైన నమాజ్ లేదు. మనము సరైన నమాజ్ చదవాలి అంటే ఏం చేయాలి? పుస్తకాలు చదవాలి. పుస్తకాలు చదువుదామంటే మనం చదివేకి రాదు. क्या है, किताबें पढ़ी तो अपना किताबें पढ़ना नहीं आता, किताबों में तो लिखो है नमाज कैसे पढ़ना क्या है, लेकिन अपना किताब మనం ఏం చేయాలి, ఎవరికైతే తెలుసు, ఎవరైతే చదివే వాళ్ళు ఉన్నారో అట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గర మనము పోవాలి, పోయి తెలుసుకోవాలి. అట్లాంటి వాళ్ళు మాకు ఎక్కడ దొరుకుతారు? जो जानते हैं इल्म को, जो कुरान को जानते हैं, जो नमाजों के अहकाम को जानते हैं, वो हमें कहाँ मिलती? मस्जिदों में मिलती और मदरसों में मिलती। और बहुत सारे ऐसे मजलिसें हैं जहाँ पर हमें नमाज के बारे में मालूमात है। तो वैसे ही एक मजलिस इंशाअल्लाह जिसका नाम इज्तिमा रखी। इज्तिमा का मतलब एक मजलिस जहाँ लोग जुड़ती। तो अल्लाह के नबी के हदीस से साबित है, अल्लाह के बहुत बड़े बड़े वादे हैं इस मजलिस में, जो मजलिसों में सिर्फ दीन को सीखती और सिखाती। तो सोचो, अभी ये जो नमाज के बारे में हमने बात की, तो सही नमाज हमें कहाँ मिलती बोले तो उलमा के पास। और उलमा कहाँ रहती? मजलिसों में रहती, चाहे वो छोटी मजलिस हो, बड़ी मजलिस हो। और मजलिस में हमें जाना जरूरी है। नहीं जाएंगे तो नहीं आएंगे, और नहीं पढ़ेंगे, नहीं अमल करेंगे तो हमारा हशर क्या है? दुनिया में औलाद मारने वाली है, आखिरत में फरिश्ते मारने वाले। ऐसी हमारी हालत, इसके बारे में सोचना है। तो अभी इंशाल्लाह 1 तारीख 2 तारीख को हमारे बयान उसकोटा में इज्तिमा है, एक मजलिस जमती इंशाल्लाह। बहुत बड़े बड़े उलमा अल्लाह वाले वहां पर आते इंशाल्लाह, दीन की बात करती। और वहां पर क्या है, जो दीन के अहकाम है, जो बुनियादी अमाल है, जो मजबूत तरीन अल्लाह के पसंदीदा अमल है, उनके बारे में बातचीत होगी। दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नबी के हदीस के बारे में वहां पर बातचीत होगी। तो ऐसे बातें अगर हम सीखेंगे तो सही तौर पर हम दीन सीखने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी पहुंचने की कोशिश करता हूँ, आप भी पहुंचेंगे। हाँ, 1-2 को है ना वह नुस्खोटा में इज्तिमा है, तो इसका ख्याल करें, खुद भी जाने की फिक्र करें। माने को वाला इज्तिमा की
మనము మాతో పాటు ఎవరైతే తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి కానీ మనము తోడుగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనము ఒక్కరిని దీని ఒక్క దావత్ ఇచ్చినామంటే ఎవరు తెలుసు, ఎవరు మాట వాళ్ళ మనసుకి తగులుతుందో, వాళ్ళు జీవితాలు మారిపోవచ్చు, వాళ్ళ జీవితాలు మారిపోయినాక వాళ్ళు మంచోళ్ళు అవ్వచ్చు, వాళ్ళు మంచోళ్ళు అయినాక ఇబాదత్ చేయవచ్చు, వాళ్ళు ఇబాదత్ చేసినాక వాళ్ళు ఇబాదత్ చేసే పుణ్యాల్లో మా ఒక భాగం కానీ. కాబట్టి మనము పోవాలా, మనం వేరే వాళ్ళకి తీసుకొని పోయే ఆలోచన కానీ మనం చేయాలి. अल्लाह ताला मेरे कहने में आपके सुनने में कोई कमी पेशी हुई हो तो अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि अल्लाह मुझे और आपको माफ फरमाए, और जो मैंने बताई है, जो आपने सुनी है, बातों को सही तौर पर अमल करने की, सही तौर पर सही मानों में समझने की अल्लाह हमें हिदायत तौफीक अता फरमाए, और जो बातें हमने अभी की है इन बातों पर हमें अमल करने की और अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की और दूसरों को भी दावत देने की अल्लाह हमें तौफीक दे।